So everything is set now. I can see approx 15 participants. Yes. Out of 21. So hope they will join very shortly. First of all, let me welcome our today's faculty CEO, Mr. Spirit Johnson. For the season. It's going to take continuously 3 days. All this is on different on some vertical part, I should say. Yes, I request to start the Okay. just to mention here, we have the participation from ECL, Okay. CPDI, Northern Board Groups, ACCL, Great. Board Grids, Wow. and Northern Board Grids, of course. Wow. Excellent. Developers is 832 E7, Great. and they are mining engineers, Great. mining engineering, civil engineering, and ENM. Great, sir. Great. Great. It's a very good combination of Kudos to the team out there at IICM, which has been able to gather them in one common place through even in the new normal where the online mode of learning has become more prevalent. I think kudos to all of you, sir, who has been able to coordinate with this gentleman and has been able to organize this session. Over to you, sir. Thank you so much, Vaishnu sir. It's an honor, it's a pleasure connecting back to IICM after a gap of 2 years, and in the new normal. It's a pleasure talking about project management for coal industry, and smiling faces of the management, honorable managers of Coal India gives me an immense satisfaction to talk and start on this topic of project management. Ladies, all the gentlemen out here, obviously, when I talk about project management, it really brings a glimpse of hope in me that yes, India's signing can only be made realistic when every department, every government department really follows the A to Z of project management. And believe me, project management is a vast course. And when you, in these 3 days, when I would be trying to bring the entire course of project management based on PMI framework, PMBOK, in these 3 days, it would be just like bringing the Shri in a small pot actually. So, but I will definitely try to make it more interesting. The topics in today which we will be covering is project management framework, project management scope, and integration management. And before even going into an understanding and before even sharing my slides with you, I would just like to take you share why actually project management for the coal industry. And I would be sharing research that which was done by a leading agency, that the three when we talk about the geographical coverage, then the study says that Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and Madhya Pradesh, they account for about 21% of the total geographical area and 14% of the total population of India and around 31% of the forest cover. And NTPC has substantial power generation capacity housed in the identified states. When we talk about royalty payments, I'm just highlighting those key factors, the challenges, around which the project management within coal industry has got a huge scope. So payments are an important, since 2006, the payment from royalty have been increasing at of about 10 to 12% for most of the states with the increased mineral production rates. Now, though these states are resource rich, they lag behind the country on several key human development indicators. In 2009-10, as per the research, 36 to 48% of the population of these states were below the poverty line. They also do poorly in water and sanitation and in energy access. So I'm just trying to share the already known facts with all of you, around which the project management course will be, taken ahead, and various key issues will be discussed on various parameters, knowledge areas, process groups, etc. Power plants are coming up in the states. A large part of the population in Odisha and Jharkhand still have no access to the electricity,
below the poverty and are below the poverty line and lack the basic amenities. Now, if I said 60%, this figure, which I would really like all of you to note it down, coal resources are located in the forest area. And out of the coal leases acquired by Coal India Limited, about 28% lie under the forest. So another challenge would be land degradation. Is a most serious concern in the mining regions. The high overburden ratio, OB, which we call OB, overburden ratio, is coal means that a high amount of overburden waste is generated for every ton of coal produced, for which land is required for dumping. In addition, large tract of land previously under mining are currently lying abandoned. India does not have a detailed inventory of abandoned mines. And as per, I would like to quote the CAG report of 2011-12 reports, a backlog in backfilling and technical reclamation of 12,643 hectares of land in 7 subsidiaries of CIL as on March 31st, 2010. Now, another challenge after land degradation is coal washing. Project management is required. Why it is required? Gentlemen, we need to understand the challenges first of all and need to point out that where we are going in this 3 days time, why we need a critical path method, because if we do not connect our theoretical knowledge with the practical challenge, the whole effort and the endeavor will go in vain. So we need to understand that what are the prevailing challenges before Coal India, which needs to be addressed through the right project management framework. Coal washing is found to be a major problem for the host states, although it has major benefits otherwise, both on efficiency and environmental grounds. Waste generated after washing is dumped on ground due to the lack of proper disposal ground in coal field, which leads to degradation of fertile land. Okay, so the next after the coal washing is fly ash, is one of the residues generated during the combustion of coal in thermal power plants. It also poses radiation and arsenic concerns, which have not been sufficiently investigated in India. Now, as per the CEA report 2011, 131 million tons of fly ash are generated every year. Less than half of this is used in brick making, cement making, land filling, embankment, etc. Ash pounds are significant contributors towards ambient construction of particulate matter to the neighboring regions. So these are the major challenges, and I would like now to move to the slide and start the discuss with the relevance of project management with reference to the challenges as discussed. now एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूर आता है, और ऑपरेशंस क्या है? मेंटेन से स्टेटस को, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली मेट्रो को हम क्यों जानते हैं? बिना आधा सेकंड के डिले के रोज वो अपनी ट्रेन को टाइम पर चला रहे हैं। तो ऑपरेशंस जो है प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद वो ऑपरेशंस को हैंडओवर होता है, एंड ऑपरेशन टीम उसको निर्धारित समय पर सुचारू रूप से चलाती है और इंश्योर करती है कि हमारा जो भी इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहे, ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड इमेज को डेवलप करे, बिल्ड करे। प्रोजेक्ट फिर क्या करता है? क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। प्रोजेक्ट का एक लक्ष्य होता है कि हम एक यूनिक सामान बनाएंगे या सर्विस देंगे या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशंस क्या करता है? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विस को से रिलेटेड है, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क आपने क्रिएट कर दिया, अब आप उसको रन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। प्रोजेक्ट क्या है? हेट्रोजीनियस टीम से बनता है। हेट्रोजीनियस, मान लीजिए अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या आपकी माइनिंग में ही बात करते हैं, तो डिफरेंट टीम्स मिलकर एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करती है। इलेक्ट्रिकल भी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी टीम हो सकती है, उसमें आपकी माइनिंग की भी टीम है, उसमें आपके आईटी डिपार्टमेंट भी हैं, जीआईएस वगैरह जो लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह कि कहाँ पर माइनिंग करना सही होगा। तो सभी टीम्स मिलकर एक प्रोजेक्ट को निर्धारित करते हैं कि कैसे वो कहाँ लॉन्च होगा और कितने दिनों में उसको कार्यान्वित किया जाएगा। और ऑपरेशंस क्या है? होमोजीनियस टीम, मतलब एक टीम जो सालों साल काम कर रही है। कोई कह रहा है हम ऑपरेशंस में 20 साल से हैं, 10 साल से हैं,
ऑपरेशंस। तो वो टीम जो है डिफर नहीं कर रही है, वो टीम एक कॉमन गाइडलाइंस पे रोज प्रोसेस कर रही है, उसमें कोई बदलाव की उम्मीद इतनी जल्दी नहीं होती है। प्रोजेक्ट क्या है? टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी है, उसका एक क्या बोलते हैं, एक समय निर्धारित है कि वो 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, और ऑपरेशंस क्या है, सालों साल वो चलता रहता है, तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। अब हम प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट्स, पहला स्कोप, दूसरा है रिस्क, तीसरा है रिसोर्स, चौथा है बजट, पांचवा है क्वालिटी और छठा है शेड्यूल। तो आपको ये जानना जरूरी है, व्हाट आर द 6 कंस्ट्रेंट्स। आपसे कोई भी पूछे कि प्रोजेक्ट के 6 कंस्ट्रेंट्स क्या हैं या कितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो आप बताएंगे 6 होते हैं: स्कोप, रिस्क, रिसोर्स, बजट, क्वालिटी एंड शेड्यूल। ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? पहले तो आपने जाना कि प्रोजेक्ट क्या है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, tools and techniques to project activities to meet project requirement। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन है कि कैसे हम अप्लाई करें नॉलेज को, स्किल्स को, टूल्स को और टेक्निक्स को प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में, जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हों। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? ये बोथ आर्ट और साइंस है एंड फॉलो द सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ये एक आर्ट और साइंस दोनों है, और इसमें हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और आप जानेंगे कि कितना कंबरसम प्रोसेस होता है। किसी प्रोजेक्ट को आज हम कर रहे हैं, लेकिन हम शायद भूल चुके हैं कि उसमें कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उसमें पहला स्टेप क्या था, जो कर रहा है वो आदमी, उसको क्या मतलब कि अगले डिपार्टमेंट ने क्या प्रोसेस फॉलो किया है, बस मेरे पास इनपुट आ जाए, मैं उसको आउटपुट में ले आऊंगा। लेकिन क्या वो इनपुट सही आया है आपके पास, ये कौन निर्धारित करेगा? इसके लिए हर एक इंसान को, हर एक मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, जो आप आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे अगले 3 दिनों में। प्रोसेस इंटरेक्शन, ये आपको जानना है। देखिए, जिसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोज आउट, ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है। आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन पर आते आते प्रोजेक्ट में एक बैक एंड फोर्थ एरो आप देख रहे होंगे, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, अब मैं इस इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोज आउट, ये तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हाई-फाई टर्म्स हुए, उसको हम अपने जीवन के किसी एक उदाहरण से लेकर समझते हैं। मैं एक शादी का एग्जाम्पल लेता हूं, जो मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेता हूं। हर घर में कोई ना कोई बेटे या बेटियों की शादी होती है। तो चलिए, बेटी की शादी है, तो सबसे पहले इनिशिएट कि हाँ, आपके मन में विचार आया कि बेटी की अब उम्र हो चुकी है शादी की, एंड लेट्स डिसाइड कि हम अब ये शादी को इस साल 2021 में करेंगे, दिसंबर में, मान लीजिए अप्रैल या अगले साल 2022 में करना है, हमें 5-6 महीने का समय इनिशिएट करना है। ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन में क्या आता है? विचार आता है। ठीक है। आप घर वालों को अपनी बात कहते हैं कि देखो, मैंने सोचा है कि अब बेटी के हाथ पीले कर दें, अब हमें बेटी की शादी करनी है अगले साल अप्रैल या मई के महीने तक कर देना है। ठीक है। ये इनिशिएशन है। ठीक है। मैरिज, हर चीज को मैं यही बोलना चाह रहा हूं, चाहे आप भोजन बनाते हो घर में, शादी ब्याह का मामला हो, कोई भी चीज एक प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि वो टेम्पररी इन नेचर होता है, उसका एक फिक्स्ड एक डेडलाइन होता है, स्टार्ट और एंड टाइम, और उसका आउटपुट जो है वो यूनिक होता है। तो ये प्रोजेक्ट की एक खासियत है, इसको प्रोजेक्ट कहते हैं। अब उसके नजरिए से आप एक शादी का उदाहरण ले रहे हैं और एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अपने नजरिए को समझिए, इसको डेवलप करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। इनिशिएट करते हैं, ठीक है, शादी का डेडलाइन आता है, तो ये होता है इनिशिएशन। प्लानिंग, अब आप प्लान कर रहे हैं कि किस तरह का लड़का आपको चाहिए, आपकी बजट क्या है, शादी में कितने खर्चे आपको पड़ेंगे, कितने लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाना होगा, कहां पर वेन्यू होगा। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का भी बात होता है, तो क्या डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाएंगे या अपने घर के पास ही किसी क्लब में शादी करेंगे, 5 स्टार होटल, आपकी बजट क्या है, या सामने वाला किस तरह का आप रिश्तेदारी कर रहे हैं, तो प्लानिंग, उसमें किस तरह के भोजन होंगे, ये सारी बातें होंगी। तो प्लानिंग, सारी कार्ड्स बनेंगे, तो वो जो इनविटेशन कार्ड्स हैं वो उनकी क्या क्वालिटी होगी,
तो प्लानिंग में आप इन सब चीज़ों पर बात करते हैं, सोचते हैं आपकी टीम कौन सी होगी, कैसी टीम होगी। आप शादी ब्याह के अरेंजमेंट में, घर में बेटा है तो बेटा उस लायक है कि आपको सपोर्ट कर सके शादी ब्याह के अरेंजमेंट में, आपके रिश्तेदार अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें आपको है। तो आपको टीम बिल्डिंग, प्लानिंग, उनके साथ डिस्कस करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना वगैरह बातें प्लानिंग में आती है। क्या बजट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में अगर आप एक बजट लेकर नहीं चलते हैं, कोई सोचेगा मैं तो रिटायर होने वाला हूं, अगले 2 साल में बेटी की शादी करनी है, मेरे पास अभी कितने फंड हैं या मुझे क्या लोन लेना होगा, ये सारी बातें आती हैं प्लानिंग में। उसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूशन। अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग, हम कैसे कर रहे हैं एग्जीक्यूशन। हम लोगों ने प्रॉपर गए, जो भी अभी तक प्लानिंग किया था, हम लोगों ने बैंक को अप्रोच किया, बैंक के पास कोई कोलेट्रल के अगेंस्ट में या सैलरी के बेसिस पे आप प्रोसेस करते हैं कि आपको उतना फंड निर्धारित हो जाए, मिल जाए। उसके बाद उस फंड को कैसे आप डिसिपेट करते हैं, किस फंड को टेंट वाले को देना है, होटल को देना है, कोई इवेंट प्लानिंग कंपनी को देना है, जो भी आपने प्लानिंग किया था कि वही लोग सब कर लेंगे। उन्होंने एक बजट बनाया है 20 लाख का, 25 लाख का, और आप उतना उनको देंगे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आता है। एग्जीक्यूट तो आप कर रहे हैं, बट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में पता चलता है कि कितना आपने सही एग्जीक्यूशन किया है। अगर आपने एग्जीक्यूशन सही नहीं किया, इसका सीधा मतलब है कि आपकी प्लानिंग में मिस्टेक है, प्लानिंग में एरर है। और वापस एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल जो होता है कि उस दौरान आपको लगा कि फंड कम पड़ रहा है, अब आपको वापस प्लानिंग में जाइए, रीवर्क कीजिए। ऑल्दो ये इस टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन की बात आती है, पर एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ही पता चलता है कि जब आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये एग्जीक्यूशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी आपने प्लान किया था, तब आपको एहसास होता है कि इसमें रीवर्क की ज़रूरत है। इसमें जिसको आप कई बार ऑफिशियल भाषा में ऑडिट कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं, अपना इंटरनल, है ना, बिफोर की मामला दुनिया के सामने आ जाए, आपने इंटरनली उसको इंस्पेक्ट कर लिया, ऑडिट कर लिया, इससे मामला बाहर जाने से बच जाता है। वो सब जानेंगे आने वाले टॉपिक्स वगैरह में, वो अभी है समय। बट मैं आपको स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कैसे रन करता है। सो कंट्रोलिंग द प्रोसेस, अगर इसमें मिस्टेक है तो इसमें कोई दिक्कत है एग्जीक्यूशन में, वापस प्लानिंग में जाइए, प्लानिंग को ठीक कीजिए। प्लानिंग में जो एरर्स हैं, जिसको हम आने वाले टॉपिक्स में आप जानेंगे, ओपन इश्यूज कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में ओपन इश्यूज का होना बहुत जरूरी है, यानी ऐसे सिचुएशन जिसके बारे में आपने कल्पना न की हो और अचानक में वो आ पड़े आपके प्रोजेक्ट में, तो आपके पास ओपन इश्यूज होने चाहिए। वो स्लॉट होना चाहिए जहां पे आप परिवर्तन करें तो बहुत क्या कहते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स ना कर जाए, उसको संभालते हुए वो एक स्लॉट होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए। उसको ओपन इश्यूज कहते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा। और फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वापस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते हैं और आप पाते हैं कि सब कुछ सही है। देन वी मूव टुवर्ड्स, ग्रेजुअली टुवर्ड्स द क्लोजर, और हम लोग प्रॉपर क्लोजर करते हैं। वो सब एक अलग मामला है, कैसे क्लोजर करते हैं, ये सारी चीजें आने वाले स्लाइड्स में हम जानेंगे। अब ये एक ग्राफ है, आप देख रहे हैं इनिशिएशन फेज। आई एम श्योर सभी लोग देख पा रहे हैं ना अभी, एंड एवरीवन इज एबल टू कनेक्ट, कि सही से समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछ लेंगे। सबको दिख रहा है ना? जी, थैंक यू। तो इनिशिएशन जो प्रोसेस है, आप देखते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। आप लाइफ लॉन्ग कोई प्रोजेक्ट को इनिशिएट नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा, आपको 6 महीने में इनिशिएट करना है, 2 महीने में इनिशिएट करना है प्रोजेक्ट को, तो आपने किया। उसके तुरंत बाद प्लानिंग शुरू होता है। प्लानिंग भी पूरे एंड तक नहीं चलता है, प्लानिंग भी एक कंसिडरेबल टाइम तक चलता है, जब तक कि, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लानिंग के तुरंत बाद एग्जीक्यूशन शुरू होता है और एग्जीक्यूशन लास्ट तक जाता है। लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्लानिंग के साथ शुरू होता है, लास्ट तक चलता है। एक चीज आप समझिए, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ही वो चीज है जो प्लानिंग के समय से शुरू होता है और प्रोजेक्ट के क्लोजर तक, जब तक हैंडओवर ना हो जाए, डिलीवरेबल्स को प्रॉपरली साइन ना हो जाए क्लाइंट के तरफ से कि यस वी हैव गॉट व्हाट वी वांटेड, तब तक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हर एक फेज में, हर एक एक्टिविटी का चलता रहता है। तो इसको आप अगर चाहें तो जल्दी से इस ग्राफ को बना लें, जिससे कि आपको याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। बाकी बातें तो मैं आपको एक सरल उदाहरण से देता रहूंगा, जिससे ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये, राइट सर?
I have a question. जी Why there is so much superimposition? जी Initiating process is superimposing with planning process and controlling process. Right. Why there is so much superimposition? Very good Can you question. Please elaborate us. Very good question, sir. Sir, प्लानिंग में when in the coming slides you will see कि प्लानिंग में lot of processes are there. See 9 नॉलेज एरिया, अभी आने वाले स्लाइड्स में आप जानेंगे कि मैं अभी बहुत ग्रेजुअली बहुत सिंपल तरीके से चल रहा हूं सो दैट कि आने वाले स्लाइड्स के लिए मैं आपको तैयार कर सकूं छोटी छोटी बातों को बताकर। देखिए इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजर को प्रोसेस कहते हैं। दिस आर द प्रोसेस ग्रुप। ओके, और प्रोसेस ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं, PROCESSES प्रोसेसेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में 42 प्रोसेसेस होते हैं और 9 नॉलेज एरियाज होते हैं, इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, HR, कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट, ये होते हैं, रिस्क। तो ये सारे आते हैं 9 नॉलेज एरियाज में। अब आप जानेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि कैसे हर एक प्रोसेस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस होते हैं और नॉलेज एरियाज होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो रिजल्ट करता है ये ओवरलैपिंग में। क्योंकि ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह आपने कभी सुना भी होगा, जरूर जानते होंगे, लेकिन इन सब चीजों को आप आज समझेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सारे कैसे कॉरस्पॉन्डिंग, कैसे कोऑर्डिनेटेड हैं एक दूसरे से, जिससे कि इनके ओवरलैपिंग होने के सर्टेन पॉइंट्स पे चांसेस रहते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस पैरेलली कई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, तो बिल्डिंग में फाउंडेशन बना, फाउंडेशन के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, लेकिन जब सुपर स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, प्लम्बिंग का काम, ये सब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पैरेलली चल रहे होते हैं और कई बार ये एक दूसरे के साथ किसी पॉइंट पर आके कनेक्ट भी होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टरिंग एंड स्कर्टिंग ऑफ द वॉल एक साथ होगा, प्लास्टर भी हो रहा होगा और उसको लेवलिंग भी किया जा रहा होगा नीचे में दीवार के, सो दैट कि आपके रूम का दीवार जो है एकदम गुड फिनिशिंग आए। तो आप जानेंगे कि वो फिनिश टू स्टार्ट कितने तरह की डिपेंडेंसीज हैं। मतलब आई विल बी वेरी एक्साइटेड कि मैं इसको और आने वाले स्लाइड्स में आपको बोलूंगा उस समय कि सर आपने याद है आपने पहले पूछा था कि क्यों ओवरलैप हो रहा है। देखिए ये कई तरह की डिपेंडेंसी होती है, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू, जहां प्रेडिसेसर का जो स्टार्टिंग है वो डिपेंड करता है सक्सेसर के स्टार्टिंग जो है डिपेंड करता है प्रेडिसेसर के फिनिशिंग पे या स्टार्टिंग पे। तो 4 तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं, तो दैट विल बी ऑल डिस्कस्ड इन डिटेल, बट एज ऑफ नाउ इतना समझ लीजिए कि ये प्रोसेसेस, नॉलेज एरियाज और प्रोसेस तीनों के इंटरकनेक्शन के कारण कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज और प्रोसेसेस टेक प्लेस। क्लियर है सर अभी के लिए? क्लियर है सर। एक और क्वेश्चन है जी प्लीज। आपने यहाँ पे शो किया है कि इनिशिएटिंग प्रोसेस पहले होगा जी। इनिशिएटिंग प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस है या फिर इनिशिएटिंग मींस सिर्फ सोचना है उसके सर इनिशिएटिंग के बाद आपका प्लानिंग? बहुत सुंदर, आई अप्रिशिएट। इसी तरह के सर जी इनिशिएट तो नहीं हो सकता है। नहीं, इनिशिएट का जैसे मैंने आपको शादी का एक एग्जांपल दिया, आई एम श्योर आपने उसको ध्यान से सुना होगा। इनिशिएटिंग में एक फादर के मन में आता है कि मेरी बेटी की शादी मुझे अप्रैल में करनी है 2022 में, तो वो इनिशिएशन एक सोच है कि मुझे ये प्रोजेक्ट को करना है। मैरिज इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMI के हिसाब से हर चीज एक प्रोजेक्ट है और हम प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं उसको हम पहले सोचते हैं, पहले इनिशिएट करते हैं, क्योंकि तुरंत कागजी कार्रवाई नहीं होगा। इनिशिएशन जब आता है तो बोर्डरूम में क्या होता है, डायरेक्टर साहब या चेयरमैन साहब कहेंगे मैं सोच रहा हूँ कोल और हमें नए कोल फील्ड्स लेने चाहिए, नई बिडिंग पे जानी चाहिए। अभी उन्होंने कुछ क्लोज लोगों से बात ही की होगी, मे बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी या माइनिंग के जनरल, किसी खास 2-3 लोगों से बात की होगी, अभी अपने मन की बात रखी होगी। हो सकता है इनिशिएशन होने से पहले ही मतलब इनिशिएट किया और वहीं क्लोजर हो जाए, यानी वहीं पर आइडिया फ्लॉप हो जाए, नहीं सर अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी ऐसा मामला है वैसा मामला है, तो डिले हो सकता है प्रोजेक्ट को 2 साल 3 साल। क्योंकि प्लानिंग में जाने से पहले इनिशिएट करके लोग पहले सोचते हैं करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा आइडिया, बहुत साल हो गए, या हमें ऐसा करना चाहिए। आई थिंक एम्प्लॉई भी चाह रहे हैं कि कुछ एक्सपेंशन हो कंपनी का, एंड तो उसको देखते हुए चलो यार प्लानिंग करके देख लेते हैं। बातों में आप समझिए, कोई भी होता है पहले, अच्छा सिनेमा देखना, गोइंग फॉर अ मूवी ट्रिप विद अ फ्रेंड इज अ प्रोजेक्ट,
आप इनिशिएट करते हैं, सभी फ्रेंड्स को पहले कॉल करते हैं, यार चला जाए वीकेंड में मूवी देखने साथ में। इट्स एन इनिशिएशन ऑफ एन आइडिया। बाकी सबने कहा नहीं बॉस नहीं चलते हैं यार, अभी तो मेरा एग्जाम का तैयारी है, मेरा सिविल सर्विस का एग्जाम आ रहा है, 2 महीने बाकी है कहीं, तो वहीं पे फ्लॉप हो गया, वहां प्लानिंग हुआ ही नहीं, इनिशिएशन में ही खत्म हो गया। तो इनिशिएशन, एग्जीक्यूशन तो प्लानिंग के बाद आता है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन का मतलब ही हो गया कि जो आपको चार्टर बनाकर प्लानिंग में दिया गया था, स्पॉन्सर ने जो अप्रूव किया था चार्टर को, वो आपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। यानी जो रिटन अप्रूवल है, आने वाले स्लाइड्स में आप जानेंगे हर एक चीज को, हर एक बारीकी। आई एम श्योर कि 3 दिन के अंदर में आप कहेंगे कि सर बहुत हेवी नॉलेज आ चुका है, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इन चीजों को। बट आई एम एक्साइटेड कि मैं आपको अभी के लिए इतना ही बता पाऊंगा। आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको कनेक्ट करूंगा और कृपया आप मेरा ध्यान उस तरफ ले जाएंगे कि आपने सर आज एक्सप्लेन कर दिया है हमें प्रॉपरली कि इनिशिएशन ये होता है। अभी आने वाले स्लाइड्स में ही आप जानेंगे। तो अभी के लिए सर ओके समझने के लिए? ठीक, थैंक यू सर। चलिए अब ये देखिए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, है स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस, रिस्क और अनसर्टिनिटी को समझने का। आप देख रहे होंगे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टेक होल्डर जो होता है आपके प्रोजेक्ट का, उसका इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोजेक्ट में बहुत हाई रहेगा, ठीक है, रिस्क भी बहुत हाई रहेगा, और प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसकी अनसर्टेनिटी भी बहुत हाई रहती है। बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हाई से लो की तरफ आ रहा है, यानी कि जो स्टेक होल्डर है उसका इन्वॉल्वमेंट भी कम होने लगता है क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है कि अब प्रोजेक्ट सही चल रहा है। रिस्क भी कम हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट अब लाइन पर आ चुका होता है, ठीक है, और अनसर्टेनिटी भी कम हो जाता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ चेंज, यानी कि ये जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है। प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि कॉस्ट उसमें जो इन्वॉल्व होगा वो ज्यादा होगा, उसमें और ज्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये एक कोरिलेशन है, एक तरह का कनेक्शन है जो आपको जानना है, इन्फ्लुएंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वर्सेस द कॉस्ट ऑफ चेंज एज द टाइम प्रोसीड्स। तो उसके बाद टेम्पलेट्स, व्हाट इज टेम्पलेट्स? टेम्पलेट का सिंपल मतलब क्या है? टेम्पलेट मींस सर इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म जो एक वेरी गुड, वेरी गुड, प्री डिफाइंड फॉर्म में कोई भी चीज रहना, या उसी वेरी टाइप का गुड, टेम्पलेट। जैसे कोई चीज डिजाइन के लिए अपन को टेम्पलेट देते हैं, उसी फॉर्म में वो तैयार होता है। वेरी गुड। फॉर्मेट है, टेम्पलेट इज अ हाँ, फॉर्मेट। फॉर्मेट सर, एग्जैक्ट वर्ड। वेरी गुड।